A very good evening, dear friends. You all are welcome on my Facebook wall. Already, you are familiar that I have given information that today I will be live on my Facebook wall and I will deliver a lecture on COVID-19 lockdown colon struggle of transgender community with lack of funds and food. One thing before delivering this lecture, I would recite the beautiful lines of Nida Fazli. अपना गम लेने लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, और कुछ दिन औरों को भी सताया जाए। बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए। क्या हुआ शहर को कुछ भी तो दिखाई दे कहीं, यूँ किया जाए कभी खुद को रुलाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वेलकम एवरीवन, आई वेलकम academicians, research scholars, activists, reformers, and professors, and all those who have been working uh, on the issues and challenges of this particular community that is known as transgender community, one of the most stigmatized, ostracized community of India. In this lecture, I am not saying that it's an scholarly lecture. I am going to tell you something extra which you don't know. You all are familiar, you all are scholars, you all have specialization in your field. But working with this community for 4 years, what was the experience I got, I want to share to all of you. One thing I would like to tell you कि when I talk about, especially in my lecture, the two word is very important. One thing is COVID-19 lockdown. We know it very well कि during lockdown what the experiences we got, what the experiences we felt. We found some laborers, we found some daily wages, we found some other homeless person who were on the road. They face they face a very big problem, and the problem was that they don't have fund, they don't have food. So I found that most of the media persons, they shared their problems, even in electronic media. I also came to know via social media, print media, about their stain, pain, all these things, means labor class. But whenever I see any news, I try to know what is the condition of transgender people, transgender community, because they are also in our nation, they are the part and parcel of our society. And according to 2011 census, 4 lakh, means 4,80,000 people are here. So one thing I would like to tell you कि when we talk about the 2011 census, we find कि 4,80,000 people of transgender community are in our nation, they are here. So we should also think about them कि what the problem they have, what do they think, in what way they live, what ultimately the problem faced by the labor class, the problem faced by homeless person, daily wages. The same thing we find also with them, the same problems we find with them. One thing I would like to tell you कि when I talk about this community, to understand this community in a better way, in a better form, it's very important that we have to go with the point that is known as what sex and gender. If you don't go with the point sex and gender, we would not be able to understand what I want to say. सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो इस कम्युनिटी को समझने के लिए है, जो इस कम्युनिटी को आपको बताने के लिए है, वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वह है कि हम इस शब्द को समझें, क्योंकि इसी शब्द को ना समझ पाने की वजह से आज हमने इस कम्युनिटी का बायकॉट किया है, आज हमने इस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया है, आज हमने इस कम्युनिटी के प्रति अपनी दया, अपना कंपैशन, अपना अफेक्शन, अपनी चाहत और इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया, किनारे लगा दिया है. So in the very beginning, I want to tell you that there are two words in our society, that is what sex and gender. One thing I would like to tell you, when I talk about sex, तो सेक्स भी आदमी का एक आइडेंटिटी है, जेंडर भी आदमी की एक आइडेंटिटी है. लेकिन जो सेक्स है वह बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, और जो जेंडर है वह आदमी का कल्चरल और
सोशल आइडेंटिटी है। एंड हाउ कैन यू मेक द डिफरेंस? सेक्स आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं शमीम हूँ, अगर मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं मेल हूँ, मैं आदमी हूँ, मैन हूँ, तो मेरा मेल होना यह बताता है कि ईश्वर ने हमें इस रूप में बनाया। तो इसका मतलब जितने भी मेल हैं उनकी पहचान इस वजह से है कि ईश्वर ने उनको उस रूप में दिया है, या उनको शरीर में कुछ ऐसे आर्गन दिए हुए हैं जिसकी वजह से दे क्लेम दैट दे आर मेल, या दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मेल। व्हेन आई टॉक अबाउट फीमेल, तो फीमेल फीमेल इसलिए नहीं है कि उसके बाल बड़े हैं, फीमेल फीमेल इसलिए नहीं है कि वो जो है क्या कहते हैं कि शी इज़ ड्रेस्ड ब्यूटीफुली। फीमेल फीमेल इसलिए कि ईश्वर ने भी कुछ उसको ऐसे 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 आर्गन्स दिए हैं जो उसको मेल से अलग करता है। तो जो हमारा सेक्स है, इट रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू फिजियोलॉजी, इट रिफर्स टू एनाटॉमी, इट रिफर्स टू आवर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। जो हमारा बायोलॉजिकल आइडेंटिटी उसको रिफ़र करता है। एज़ फार एज मैटर इज़ कंसर्न टू जेंडर, तो जेंडर मैंने आपको बताया कि जेंडर जो है वह क्या है? कल्चरल है, सोशल है। एक इंसान जब धरती पर जन्म लेता है तो धरती पर जन्म लेने के बाद जैसे ही वह कपड़े में लपेटा जाता है उसका जेंडर वहीं से शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बॉय है तो तुरंत उसको कहा जाएगा कि इस बच्चे को हमें क्या लाना है? पैंट लाना है, शर्ट लाना है, हमें इसको ये कपड़े पहनाना है, हमें इसको इस रूप में रखना है। तो उस सारी चीज़ें वहीं से ही शुरू हो जाती हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जेंडर के लिए कहा गया कि जेंडर कल्चरल और परफॉर्मेटिव है। कल्चरल और परफॉर्मेटिव, जिस समाज में हम वहाँ रहते हैं उस समाज ने क्या किया? परफॉर्मेंस के आधार पे मेल और फीमेल के काम को बांट दिया, और वही मेल चाहे उसका खाना पीना, उठना बैठना, रहना सोना, जब उसने उसको बांट दिया तो उसी खांचे में, उसी फ्रेम में वह उसको देखने की कोशिश करता है। अगर उसमें से वह फिट नहीं बैठता है तो उन दोनों खांचों में से जो फिट नहीं बैठता उसको हम हटा देते हैं या उसको हम निकाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं ये बात करूँ कि मैं शमीम हूँ, और अगर मैं शमीम जो है क्या करूँगा कि मैं अगर लिपस्टिक लगाकर, बिंदिया लगाकर या कुछ ऐसी चीज़ें पहन करके सोसाइटी में निकल जाऊं तो द पीपल विल लॉफ एट मी। बिकॉज क्यों? क्योंकि मेरी आइडेंटिटी उन्होंने दिया कि यू आर अ मेल एंड बीइंग अ मेल व्हाट यू हैव टू डू, बीइंग अ मेल आपको इस तरह से रहना है, इस तरह से चलना है, ये पहनना है, ये खाना है, ऐसे आपको खाना है, ऐसे आपको सोना है। मैंने जेंडर के साथ एक वर्ड यूज़ किया कि जेंडर परफॉर्मेटिव है। जेंडर परफॉर्मेटिव कैसे है? आप इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं इस वे में कि हम जो जेंडर का पार्ट पढ़ाते हैं किसी को 4-5 चीज़ों के माध्यम से देते हैं। एक तो जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो, मूवीज़ हो, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी वजह से हमें नॉलेज गेन होता है, उन सारी जगहों पर जेंडर की बात की जाती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मूवी, यू ऑल हैव सीन मूवी क्रिश 3। In that movie you see that there is a heroine Priyanka Chopra. Priyanka Chopra flies with the help of a balloon in the open sky. The balloon suddenly bursts. Priyanka is about to fall, and what happens? Hrithik Roshan runs, catches Priyanka in left hand and descending, beholding the beautiful eyes of Priyanka Chopra. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर ऋतिक रोशन ये कर सकते हैं तो शमीम को भी करना चाहिए चूँकि परफॉर्मेटिव है। अगर ऋतिक रोशन ये कर सकते हैं तो हम सारे प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस को करना चाहिए। हम सारे लोग करके देख लें कि इसका क्या मज़ा हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जेंडर परफॉर्मेटिव हुआ। जेंडर परफॉर्मेटिव इस सेंस में हुआ कि ऋतिक रोशन एक पुरुष हैं, साहस का जितना काम है, बहादुरी का जितना काम है, वो सारा काम कौन पर कर पाएंगे? केवल और केवल पुरुष समाज कर पाएगा। इस पार्टिकुलर चीज़ को मूवी में दिखाया गया, जिसके माध्यम से हमने एक माइंडसेट तैयार किया कि बहादुरी का सारा काम उन्हीं के बस में बात है। मैं ऐसा नहीं कहता कि औरतों के बारे में इस तरह का डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन एक्सेप्शन, बहादुरी की उम्मीद हमसे की जाती है कि जितने भी बहादुरीपूर्ण काम होंगे दैट विल बी डन ओनली एंड ओनली बाई दिस मैन। जबकि हर आदमी में एक औरत और हर औरत में एक पुरुष होता है। वी नो इट वेरी वेल। सेकेंड पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस टू ऑल ऑफ यू कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह मून को क्या कहता है? मामा कहता है। जैसे ही वह बड़ा होता है वह मून में जो है क्या करता है? बिलव्ड का रूप देखने लगता है। तो चांद का भी जेंडर हम चेंज कर देते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ये बातें हमें कहाँ पढ़ाई जाती हैं? इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई जाती हैं। चंदा मामा दूर के
और क्या क्या करके पढ़ाया गया। लेकिन बाद में वो इस पोएम को नहीं रिसाइट करता, बल्कि इंस्टेड ऑफ रिसाइटिंग दीज पोएम्स एज ही बिकम्स मैच्योर ही फाइंड्स द ब्यूटीफुल फेस ऑफ हिज बिलव्ड इन द मून। सेकेंड पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब हम जो है स्कूल के करिकुलम को देखें तो सबसे ज़्यादा हमें अगर जेंडर को लेकर के बात करनी चाहिए तो वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो हमारी मानसिक जो जिनकी जो भी बहुत छोटे लर्निंग स्टेज में है, वहाँ पे क्या हम पढ़ा रहे हैं। हम जो है प्ले ग्रुप के बच्चों में अपने बच्चे को खुद हमने सिलेबस में देखा कि वहाँ पे लिखा है कि राम गोज़ टू स्कूल, सीता स्वीप्स, राम स्कूल जाता है, सीता झाड़ू लगाती है। तो ये जो इमेज बना के दिखाया गया है, सीता एक लड़की है, इसका मतलब कि लड़की का काम केवल झाड़ू लगाना है। राम ने टाई बेल्ट कपड़ा बेल्ट बहुत अच्छे ढंग से पहन लिया, मम्मा से मम्मा बाय बाय करता हुआ स्कूल को चला गया। तो जो इमेज मैंने डाला, हमारे यहाँ के लड़के भी वैसे ही उसी हिसाब से उस चीज़ को फॉलो करते हैं। चौथा पॉइंट मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि स्कूल करिकुलम में एक और जगह पे है जहाँ पे एक पोएम थी कि उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। मैं पूरी पोएम पे बात नहीं करूँगा, मैं केवल इस लाइन में एक बताना चाहता हूँ कि एक माँ है जो अपने बच्चे को उठा रही है। द सन निकल चुका है, मीन्स द सन हैज़ राइजन, लेकिन लड़का उठा नहीं है। लड़का वहाँ पे अभी है और माँ उसके प्यार, मैं नहीं कहता कि माँ को प्यार नहीं करना चाहिए, वहाँ पे माँ की मोहब्बत को दिखाया गया है, लेकिन वहाँ पे लाल की जगह बेटी भी हो सकता था, उठो बेटी अब आँखें खोलो। लेकिन आज तक मैंने पूरी पोएम में कभी ये नहीं पढ़ा कि उठो बेटी अब आँखें खोलो। वो मेरी उम्र 40 साल की होने जा रही, मैंने कभी इस चीज़ को नहीं देखा वहाँ पर, उठो बेटी अब आँखें खोलो ऐसी कोई पोएम पढ़ाई गई हो। तो वहाँ पर भी लड़का जो है क्या है, 7 बज गया है, सूर्य निकल आया, लड़का अभी भी क्या है, लगातार सो रहा है। ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन वहाँ पे उसी के बदले मुझे ये है कि एक जो बेबी है, बेबी गर्ल है, जो हमारा किड्स है, मीन्स बेबी गर्ल है, जब वह मेच्योर होती है तो उसको खेलने के लिए हम क्या लाते हैं, हम लाते हैं कि गुड़िया लाते हैं, उसको बताते हैं यही तुम्हारी ज़िंदगी है, यू हैव टू प्ले दिस वे, यू हैव टू प्ले दैट वे। और बच्चे की डिमांड गन होती है, हम उसको गन ला के दे देते हैं। तो जब वो गुड़िया से खेलती है तो वहाँ पर भी वो कहती क्या कहती है, एक पोयम उससे भी रिलेटेड है, यह देखो यह मेरी गुड़िया, अम्मा तुमने देखी गुड़िया, मैं झूले में इसे झुलाती, मैं भी इसके संग सो जाती। तो गुड़िया के साथ खेलना, उसके साथ सोना, ये सारा एक कल्चरल प्रोडक्ट है जो कि कहाँ पे दिखा दिया गया, उस बेटी के साथ दिखा गया। और वायलेंस से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से, बहादुरी से रिलेटेड गन जिसका सिंबल है वो किसके खांचे में डाल दिया गया, उस लड़के के खांचे में डाल दिया गया। चौथा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि हमारे अपने स्कूल करिकुलम में ऐसे बहुत सारे, एक और पोएम रही है, उस पोएम को अगर मैं बात करूँ जिसमें एक नाम है क्या कहते हैं कि बंदर वाला बंदर लाया, बंदर के संग एक बंदरिया, पहनी थी वह लाल घंघरिया। यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि बंदर वाला बंदर लाया, ठीक है, ये सब खेलने का काम हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जब ये बताया जाता है कि जब बंदर वाला जो है इस गेम को खेलता है और बंदरिया लोगों से पैसे ठुमुक ठुमुक कर नाच दिखाती, मांग मांग कर पैसे लाती, तो बंदर वाले से जब ये पूछा जाता है बंदर से कि अगर ये तुम्हारी शादी हो गई, अगर ये तुम्हें वहाँ नहीं जाएगी तुम्हारे साथ ससुराल, तो तुम क्या करोगे, वो डंडा लिया रहता है, कहता है मैं इसको डंडे से मार के ले जाऊँगा। मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी वायलेंस की हम बात करते हैं, वायलेंस का इमेज दिखाते हैं और ये कहते हैं कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती करके कहीं ना कहीं हम ऐसे ले जाएंगे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण, आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ऐसे आप सैकड़ों उदाहरण जो है देख सकते हैं कि जो हमारी लाइफ का हिस्सा है। जैसे टीवी में अक्सर ये डायलॉग देखा जाता है कि तुम तो हमारे पैर की जूती हो, या कभी कभार हम ये कहते हैं कि औरत घर की जीनत है, और एक और डायलॉग बोला जाता है कि शर्म और हया उसका गहना। मैं नहीं कहता कि ये सब कहीं से गलत है, अगर ये सब है, अगर ये उनके लिए, बेशक ये चीज़ें आप उनके लिए बोलें, तो उसके पैरेलल मेन के लिए क्या कहा गया, मेन के लिए क्या बोला गया, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस पॉइंट, इफ़ एनीवन बिलीव इन दिस थिंग दैट्स गुड, लेकिन उसके पैरेलल जो आदमियों के लिए भी बोला गया वो भी मार्केट में सुनाई पड़ना चाहिए, लेकिन कभी भी सुनाई नहीं पड़ता है। कभी भी जब भी कैरेक्टर की बात आती है तो हमेशा कैरेक्टर पे क्वेश्चन औरत पर ही किया गया है। मेरा कहने का मतलब है कि इस सब का सब एक डिवीज़न है
जो उसमें किया गया। अब सवाल ये उठता है कि इनका रिलेशन थर्ड जेंडर से कैसे या ट्रांसजेंडर से कैसे इसका संबंध है। आई एम जस्ट कमिंग। जब मैं जेंडर की बात कर रहा था तो मैंने बताया कि समाज में केवल जो है जेंडर के बाइनरी कॉन्सेप्ट को लिया गया। बाइनरी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बाइनरी अपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो जैक्स देरेदा ने यूज़ किया था, और उन्होंने कहा कि दुनिया के निज़ाम या स्ट्रक्चर को समझने के लिए पूरे दुनिया के या निज़ाम या स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। ब्लैक है तो वाइट है, प्रेजेंस है तो अब्सेंस है, गॉड है तो सेटन है। ही टेल्स हियर कि ये सब चीज़ें होती हैं और इसी वजह से उसको समझा जा सकता है। लेकिन जब आप जेंडर को केवल बाइनरी फ्रेम में देखते हैं तो आप उसको सही से नहीं देख सकते हैं, सही से नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेंडर में केवल मेल और फीमेल ही नहीं है, बल्कि एक तीसरा भी क्लास है जिसको हम क्या कहते हैं, थर्ड जेंडर कहते हैं, हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। थर्ड जेंडर मोस्ट प्रोबेबली इट कम्स फॉर हुम, थर्ड जेंडर मोस्ट प्रोबेबली इट कम्स फॉर सच अ पीपल हु हैज़ बीन एड्रेस्ड एज हिजरा, या जो एक बॉर्न हिजरा है, इन मीन्स देयर इज़ अ डिफेक्ट इन देयर बॉडी, उनकी अपनी बॉडी में डिफेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उनके बारे में क्या बात करेंगे, उनको आप कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे आप ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वे भी हमारी समाज का हिस्सा है, या हम उनको जो है ले सकते हैं या समझा सकते हैं। नो नॉट एट। इसलिए हमें अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना है कि जेंडर जब हम बात करते हैं बाइनरी कॉन्सेप्ट का तो हम एक पहलू को छोड़ दे रहे हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम समाज में, व्हेन वी आर इन अ सोसाइटी, या इफ़ यू वांट टू मेक अ सोसाइटी अ बेटर सोसाइटी, अ गुड सोसाइटी इन विच वी हैव टू प्ले सम इम्पॉर्टेंट रोल, तो हमें उसमें भी कुछ बातें कर लेनी चाहिए, हमें उसमें भी कुछ बातें समझने की कोशिश करना चाहिए। और वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहला चीज़ कि ये वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, और वह माइंडसेट क्या है? पैट्रियार्की का। पैट्रियार्की पितृसत्तात्मक समाज। उस पितृसत्तात्मक समाज में सारा निर्णय जिसको लेना हो किसको लेना है? सारा निर्णय केवल पुरुष को लेना है। और ये कहा जाता है, इसीलिए साइमन दी बूवर ने कहा कि वुमेन इज़ नॉट बॉर्न बट मेड। औरत पैदा नहीं होती बल्कि समाज में बनाई जाती है। पैदा क्या होती है? पैदा वो फीमेल के रूप में होती है। बनाई क्यों जाती है? क्योंकि उसको एक कल्चरल फ्रेम में बांधा जाता है, उसको एक सोशल रोल दिया जाता है, सोशल परफॉर्मेंस उसका होता है, वो सारी चीज़ें उससे एक्सपेक्ट की जाती हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स या व्हेन वी गो अबाउट दीज थिंग्स, तो एक दूसरा एस्पेक्ट भी, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए।